Dear students, today's lecture is very conceptual. We have to go for the derivation of some basic formulas that were used in the previous lectures. So first of all of you know that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, and similarly a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. These are the two basic formulae. These formulae are also known as identities. इनको हम identities भी कहते हैं because their left hand side are equal to their right hand side for any values of the real numbers a and b. अब आप a और b को कोई भी values दें, उसका left hand side का जो आंसर है वो right hand side के ही equal आएगा. तो in a way that these are also known as identities. अब हम इन दोनों आइडेंटिटीज को सबसे पहले ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सी व्हाट हैपन. तो हमारे पास जो है वो दो रिजल्ट्स आएंगे जिन्हें नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए. नाउ बाय एडिंग दीज टू, बाय एडिंग बोथ साइड्स a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 times a square, these two like terms will be added, plus 2 times b square, these two terms will be cancelled, they are same term with opposite sign. So a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to 2 times a square plus b square. So in the last, a square plus b square is equal to a plus b whole square plus a minus b whole square divided by 2. यानी मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर दिया. तो अब एक रिजल्ट तो हमारा ये है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is equal to a plus b whole square plus a minus b whole square divided by 2. ये रिजल्ट हम कहाँ यूज करेंगे? when we have to find the value of a square plus b square and we have been given the values of a plus b as well as value of a minus b. तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे. इसी तरह अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को सब्ट्रैक्ट करें, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 times ab, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Say number 1. Number 2, subtracting 2 from 1, a plus b whole square minus a minus b whole square. So their signs will be changed. Now these two will be cancelled and there will be 4ab, and in the last ab will be a plus b whole square minus a minus b whole square divided by 4. यानी मैंने यहाँ 4 पे डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स को. तो ये this is another result that we will use in some questions of the exercise 4.2. और ये हम तब यूज करेंगे when our requirement is ab, यानी we have to find the value of ab
and we are given a plus b as well as the value of a minus b, तो फिर हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। और इसी तरह जब आपको ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए और ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन हो तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। इसी तरह द नंबर 3 रिजल्ट इज एज ए प्लस बी, दिस इज नंबर 1, this is number 2, and this is number 3. A plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. हम दोनों साइड पे a plus b whole square minus 2ab यानी सब्ट्रैक्ट करें, और इस साइड पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, दिस विल बी कैंसल्ड और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा तीसरा रिजल्ट है। और ये कब यूज करेंगे? जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू गिवन हो और ए बी की वैल्यू गिवन हो, तो हम रिजल्ट नंबर 3 जो है, दिस इज द रिजल्ट नंबर 3, इसको हम यूज करेंगे। इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम दोनों साइड्स पे 2ab ऐड करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, दिस विल बी कैंसल्ड और हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a minus b whole square plus 2 times ab, this is the number 4। ये 4 रिजल्ट हैं हमारे जो आज के आपके पहले 2-3 क्वेश्चन में यूज होंगे। अब मैं इनको समराइज करके यहाँ पे एक कॉर्नर पे लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो कि क्वेश्चन में आपने किस तरह से इन रिजल्ट्स को अप्लाई करना है। ये तो इनकी डेरिवेशन थी, ये इनका प्रूफ था दूसरे लफ्जों में। तो अब हम इनको नंबर वाइज जो है इधर राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 रिजल्ट दैट वी हैव प्रूव्ड जस्ट नाउ, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्वेश्चंस के अंदर ये रिजल्ट यूज करेंगे, इसकी डेरिवेशन यूज नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन आपको पहले मैंने बता दी है। इसी तरह नंबर 2 अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज द सेकंड रिजल्ट। And similarly number 3 a square plus b square is equal to a minus b whole square plus 2ab। आप देख रहे हैं इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इन तीनों केसेस में हमें वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही की ही चाहिए, यानी आर रिक्वायरमेंट इज सेम। लेकिन हमारी जो राइट हैंड साइड है यानी जो हमें गिवन है वो चेंज होता जाएगा। तो पहले में हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन होगी और उसके साथ a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन होगी, तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। दूसरे के अंदर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू होगी और a b की वैल्यू होगी, यानी a माइनस बी को उसने एलिमिनेट कर दिया। तीसरे के अंदर आपके पास a माइनस बी की वैल्यू हो और साथ a b की वैल्यू हो और आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। ये तीनों फॉर्मूले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू के लिए यूज होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ए बी
खत्म हो AB number 4 is equal to A plus B whole square minus A minus B whole square divided by 4. ये भी एक रिजल्ट है और ये हम यूज करेंगे व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन हो, तो हम ये वाला रिजल्ट जो है, ये नंबर 4 जो है, इसको यूज करेंगे। ये तो आपके स्क्वायर के हवाले से है। अब आते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी और प्लस 2 टाइम्स सी ए। और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस 2 को कॉमन कर लें तो ए बी और फिर बी सी और फिर उसके एंड पे सी ए। तो ये फार्मूला आपका यूज होगा। इसमें देयर आर 3 रिक्वायरमेंट कि समटाइम्स हमें वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए होगी, तो हमारे पास फिर ये 2 वैल्यूज गिवन होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी और सी ए की। इसी तरह कभी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमारे पास गिवन होगा ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी और सी ए। और सम टाइम जो लास्ट ऑप्शन इसकी हो सकती है कि वैल्यू जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की चाहिए होगी, तो हमारे पास फिर ये 2 वैल्यूज गिवन होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज वेल एज ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी गिवन होगी। तो ये फार्मूला भी आपका यूज होगा इसी एक्सरसाइज में। इसके बाद 2 क्यूब के फार्मूले हैं, दैट इज ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी यूज हो गया इस एक्सरसाइज में। एंड इन द लास्ट ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यानी क्यूब के फॉर्मूले में अगर माइनस हो तो थ्रू आउट माइनस चलता है, अगर प्लस हो तो थ्रू आउट उसमें प्लस का साइन आता है। ये तो है, दिस इज नंबर 5, दिस इज नंबर 6 और दिस इज नंबर 7 एंड दिस इज नंबर 8। ये तो है फॉर्मूलों की समरी आपकी जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 of this exercise. Question 1, part 1. Now students, if a plus b is equal to 10, a minus b is equal to 6, वैल्यू हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें इसमें फॉर्मूला नंबर 1 यूज होगा क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू भी है और ए माइनस बी की वैल्यू भी है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला पेश करेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नाउ पुट द वैल्यूज given to you people. A square plus b square, our requirement will be as it is. So write 10 instead of a plus b, or write 6 in place of a minus b divided by 2.
So a square plus b square is equal to 100 minus plus 36 divided by 2. So 136 divided by 2. So the last answer will be a square plus b square is equal to 2 6 are 12 or 2 8 are 16. Now dear student, this is the answer. This is the value of a square plus b square. This is question number 1, part 1. Now part 2 is left for not your exercise. Part 2 is another formula. उसमें दूसरा formula यूज हो रहा है, वो भी करते हैं. और इसके बाद पार्ट नंबर 2 पे आ जाएं. If a plus b is equal to 5, a minus b is equal to square root of 17, then find the value of ab. Now students, as we know that यहाँ फॉर्मूला जो है वो आपका नंबर 4 यूज होगा, जो रिजल्ट अभी हमने डिराइव किया थोड़ी देर पहले. एज ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4. नाउ पुट द वैल्यूज. सो ए बी विल बी वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज 5 होल स्क्वेयर प्लस की जगह माइनस आएगा और a माइनस बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 17, इसका स्क्वायर, और उसके बाद 4 एज इट इज. नाउ स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू 25 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 17 आएगा 4. सो ए बी is equal to 17 minus 25 minus 17, 8 divided by 4. So the answer will be 4 2s are 8. This is the value of AB. So in this way we have completed the part 2 of question number 1 by making use of the result number 4 as written before you people. AB is equal to a plus b whole square minus a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. इससे आपने पार्ट नंबर 2 को भी कंप्लीट कर दिया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वो फॉर्मूला नंबर 6 के रिलेटेड है. 6 और 5 बेसिकली एक ही चीज है, मैंने सिर्फ 2 कॉमन किया हुआ उसमें से. Question number 2 has no part. If a square plus b square plus c square is equal to 45, a plus b plus c is equal to -1. The value हमें जो फाइंड आउट करनी है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला आपका जो है वो नंबर 6 यूज होगा. एज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1. या पहले फॉर्मूला लिख लें, उस बाद में वैल्यूज पुट करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए Now student, put the values given to you. What is the value of a plus b plus c? That is equal to -1. So -1 here, whole square, a square plus b square की value we have been given as 45. So write here 45 in place of a square plus b square plus c square plus 2 as it is. a plus ab plus bc plus ca की वैल्यू हमें चाहिए. So this factor will come without any change as it is. Now -1 whole square 1 और -45 is equal to 2 times ab plus bc और प्लस ca. ये 2 इसमें ऐड नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये 2 इसका मल्टीपल है और 45 जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेपरेट टर्म है, वो इस साइड पे आकर सब्ट्रैक्ट होगी. अब -44 और ये 2 इधर आकर अब इस पे डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए और फाइनल जो आंसर बनेगा दैट विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -22, यानी 2 डिवाइड कर देगा 44 को. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट. तब आप देखिए इसमें हमारे पास जितने भी पार्ट्स हैं, से नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, दे आर ऑफ द सेम काइंड और वो अब आपने अपने तौर पे करने हैं. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, these are of the same kind, so we will go for question number 6. The other remaining questions of the same kind, you people will be able to solve these. Now I have written 4 formulae before you people और ये क्यूब के फार्मूले हैं. अब आप देखिए इसमें हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, एक्स वाई की वैल्यू 12 है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है. तो हम पहले x प्लस वाई का होल क्यूब यानी फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे. सो ए एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. नाउ अब आपके पास जो वैल्यूज हैं उन्हें पुट करें. यू हैव द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एज 7. तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला डिटर्मिन करना है कि कौन सा फॉर्मूला लिखना है और वो हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 जो है इससे पता चल रहा है कि हमने x प्लस वाई का होल क्यूब लिखना है, स्क्वायर नहीं लिखना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्यूब में आ रही है. यानी हमें यहाँ वैल्यू चाहिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब. तो इसका मतलब है कि क्यूब वाला फॉर्मूला यूज होगा. अगर यहाँ पे होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फिर हम डेफिनेटली स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं. अब हमारे पास चूंकि वैल्यू जो रिक्वायर्ड है वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए. सो हम क्यूब का फार्मूला लिखेंगे. अब क्यूब में फिर 2 कैटेगरीज हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे या a माइनस बी का होल क्यूब. तो हमारे पास जो वैल्यू है वो x प्लस वाई यानी a प्लस बी की वैल्यू गिवन है. सो फार्मूला लिखने के बाद अब आपने वैल्यूज पुट करनी है. सो 7 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, प्लस 3 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई 12, राइट हेयर 12 और x प्लस वाई की वैल्यू 7 है. अब आप 7 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई. नाउ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7
तो दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 49 इंटू 7. सो 9 7 3 आर 63, 6 कैरी और 7 4 आर 28, 28 प्लस 6 34, यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो 343 आएगा. 21 नहीं लिख देना, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 36 इंटू 7, 7 6 आर 42, 4 कैरी और फिर 7 3 आर 21 और 4 25, यानी इसका प्रोडक्ट जो है वो 252 आएगा. सो राइट हेयर 252. अब ये 252 इस साइड पे आकर इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा. सो 343 माइनस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 और 4 यहाँ से कैरी करेंगे 14 माइनस 5 9 और यहाँ रह जाएगा 2, तो 2 में से 2 यानी 0. सो लिहाजा आपके पास आंसर जो आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 91. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है. अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये बच्चों एक ही काइंड के हैं, एक ही तरह के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा देते हैं ताकि एक और टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आ जाए. क्वेश्चन 9, 5x minus 6y is equal to 13, xy is equal to 6, 125 x cube minus 216 y cube is equal to question mark. Now dear students, in this question it is a application of formula number 2 यानी a minus b whole cube. तो यहाँ a रिप्रेजेंट कर रहा है 5x को और b रिप्रेजेंट कर रहा है 6y को. तो पहले हम इसका क्यूब का फॉर्मूला लिख लेंगे, यानी 5x माइनस 6y और इज इक्वल टू होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें. 5x क्यूब माइनस 6y क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म 5x इंटू सेकेंड टर्म 6y और फिर आगे ब्रैकेट में आपने लिखना है 5x माइनस 6y, यानी फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया नंबर 2, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स a b इंटू a माइनस बी, यानी पहले फॉर्मूला लिख लें. इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद. तो आपने फिर देखना है कि किस तरह से आपको कन्वीनियंट है. अब आपने इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें. 5x माइनस 6y वैल्यू बाद में पुट करते हैं इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 125 x क्यूब माइनस 6 इंटू 6 इंटू 6 216 y क्यूब माइनस 5 3s are 15, 15 6 are 90 xy इंटू 5x माइनस 6y, ये है आपका नेक्स्ट स्टेप. अब आपने इसके अंदर जो वैल्यूज गिवन है आपको वो इसमें पुट कर दें. 5x माइनस 6y की वैल्यू भी है आपके पास 13, राइट हेयर 13 होल क्यूब इज इक्वल टू 125
एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब as it is minus 90 value of xy is given to you, that is 6. Similarly value of 5x minus 6y is also 13. तो वो यहाँ वैल्यू ये सारी आपने सब्स्टिट्यूट कर दी. अब इसके बाद दिस इज द सेकंड लास्ट स्टेप. सो 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 इंटू 13, 169 इंटू 13, 27, और फिर उसके बाद 3 6 18 और 2 20, 2 कैरी, 5 9 6 और 1. So the product will be 7 9 1 और 2, यानी 2197. 2197 ये है इसका प्रोडक्ट. आप कैलकुलेटर से देख लेना इसे. और 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब माइनस, अब तीनों का प्रोडक्ट चाहिए हमें, यानी 78 इंटू 9, 72 7 कैरी, 9 7s are 63, 9 7s are 63 और प्लस 7 70, और साथ इसके ये जीरो भी आ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा 7020. अब ये 7020 इधर आकर ऐड होगा तो 2197 प्लस 7020 इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब. अब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो बन जाएगा आंसर 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 प्लस 7 7, 2 प्लस 9 11, 1 कैरी और 1 प्लस 1 2 और 7 प्लस 2 9. So this is the answer. We have to check its answer. Exercise 4.2. Question number 9. 4.2 question number 9. Now dear students, the answer is correct. 9217. This is the value of 125 x cube minus 216 y cube. Now question number 10 and 11, they are of the same kind, and similarly 12 and 13 are of the same kind. क्वेश्चन नंबर 11 करूंगा. 10 इजी है, वो भी फार्मूला है, इसमें माइनस का फार्मूला है क्यूब का. इफ x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7, वैल्यू चाहिए हमें x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब क्वेश्चन मार्क. लास्ट फार्मूला यूज होगा बच्चों इसमें, नंबर 4
वेरी सिंपल। अब आपने फॉर्मूला पहले लिखना है, x माइनस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब minus 3 into x minus 1/x. Now put the values. X minus 1/x की जगह 7 is equal to, this is our requirement, it will be written as it is, x cube minus 1/x cube minus 3 into its value again 7. So 7 into 7 into 7. 7 into 7 into 7, 49 into 7, 9 sevens are 63, 6 carry, 7 fours are 28, plus 6, 34, यानी 343 is equal to x cube minus 1/x cube minus 21. This 21 will be added to 343, साइन चेंज हो गया इधर आकर, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब. सो द आंसर विल बी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 3 and 1 4, 2 और 4 6 and 3 64. This is the answer for this question. Very easy part. Now we have to go for only one part, that is the last part. Question number 13. Question number 13 12 इसी तरह का है, वो आपके लिए इजी है. उसमें भी क्यूब का फॉर्मूला आएगा प्लस वाला. मैं माइनस वाला कर रहा हूं क्योंकि माइनस का साइन आमतौर पर बच्चों को कंफ्यूज करता है. सो क्वेश्चन नंबर 13. If 5x minus 1/5x is equal to 6, हमें वैल्यू चाहिए 125x क्यूब minus 1/125x क्यूब is equal to question mark. Now dear students, formula number 4 will be applied here also. So write the formula 5x minus 1/5x. अब मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको इस मेथड से करवा दूं. नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. बच्चों ये भी एक अप्रोच है, आप इसको भी देखें कि वैल्यू लिख ली 5x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6 बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. यानी ये भी एक मेथड है, आप इसको भी अप्लाई करें. सो 5x माइनस 1/5x होल क्यूब इज इक्वल टू 6 होल क्यूब. फर्क क्या है इसमें और उसमें कि वहां पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता था, बाद में वैल्यूज पुट करता था. अब यहां मैंने इसका दोनों तरफ क्यूब ले लिया, तो आंसर अल्टीमेटली एक ही आएगा. सिर्फ आपने देखना है कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है, फिर आपने उससे कर लेना है. अब फॉर्मूला एक्सपेंड कर दें, a माइनस बी का होल क्यूब यानी 5x का क्यूब माइनस 1/5x का क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म 5x इंटू सेकेंड टर्म 1/5x इंटू 5x माइनस 1/5x, ये मैंने लिख दिया. अब आपने इसमें से जो वैल्यूज है दीज टू विल बी कैंसल्ड और ये हमारे पास आ जाएगा 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 3 एज इट इज, और वहां 5x माइनस 1 और 5x की जगह ये 6 वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, और इधर 6 का क्यूब वो आपने लिखना है 6 इंटू 6 216, और इधर भी
216, ये 6 का क्यूब आ रहा है आपका, यहां से हमने दोनों तरफ क्यूब लिया था, इस साइड का भी और इस साइड का भी, इसका क्यूब ये बन गया, और 6 का क्यूब जो है वो 6 इंटू 6 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट मेक श्योरली 216। अब आपके पास ये जो -18 है ये 216 में ऐड हो जाएगा, और आपके पास जो आंसरिंग स्टेप आएगा दैट विल बी हेंस 125 x क्यूब माइनस 1/125 x क्यूब इज इक्वल टू, इसको 18 को 216 में ऐड कर दें, ये -18 बनेगा और इधर आकर ऐड होगा, तो 4 और 3 और 2 यानी 234। तो ये है इसका आंसर। ये भी चेक कर लेते हैं बच्चों, आई होप ये भी ठीक होगा। और इस तरह से आपके पास (4.2) एक्सरसाइज, द क्वेश्चन इज 234, 13 का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व हो गए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टराइज के रिलेटेड है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का है, वो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर दैट टुमारो इंशाल्लाह। अब इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स आपके रह गए हैं क्वेश्चंस के, वो आपने अपने होमवर्क के तौर पर उनको कंप्लीट करना है, और जब तक आप उनको होम असाइनमेंट के तौर पर नहीं करेंगे तो आपकी जो एम्बिगुइटीज़ हैं, जो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो उस वक्त तक क्लियर नहीं होगी जब तक आप इन्हें खुद अपने पास नहीं करेंगे।